Welcome to lecture series on thermal stresses in bars. This is the problem of October 2023 question paper. Question 1b. Problem is in this way. The composite bar consists of steel and aluminum components. Steel and aluminum components, as shown in figure. Is connected between two grips. Connected to two grips at the ends at a temperature of 60 degrees Celsius. So initial temperature is 60 degrees Celsius. At this temperature, this series bar of steel and aluminum, they are connected together. And this area of steel is 250 mm square, area of aluminum is 375 mm square, length of steel is 800 mm, length of aluminum is 400 mm, and they are connected at the ends between the two grips. So fixed support or grip is there at the ends, and initial temperature is 60 degrees Celsius. Now find the stresses in the two rods when the temperature falls to 20 degrees Celsius. So temperature fall हो रहा है, फाइनल टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस. तो ये टेम्परेचर फॉल होगा 60 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस, इतना टेम्परेचर फॉल होगा तो कितने स्ट्रेसेस होंगे. फाइंड द स्ट्रेसेस इन द टू रॉड्स इफ व्हेन द टेम्परेचर फॉल्स टू 20 डिग्री सेल्सियस. दो कंडीशन में हमें फाइंड आउट करना है ये टेम्परेचर स्ट्रेसेस. इफ द एंड्स डू नॉट यील्ड, फर्स्ट केस. सेकंड केस, इफ द एंड्स यील्ड बाय 0.25 mm. दो केस है. पहले केस में एंड्स यील्ड नहीं हो रहे और दूसरे केस में एंड्स यील्ड बाय 0.25 mm. तो दोनों केस में टेम्परेचर स्ट्रेस का वैल्यू क्या रहेगा वो हमें कैलकुलेट करना है. स्टील और एल्यूमिनियम में टेम्परेचर स्ट्रेसेस क्या होंगे. Take Young's modulus for steel is 2 into 10 to 5 Newton per mm square. Young's modulus for aluminum is 0.7 into 10 to 5 Newton per mm square. Alpha S, coefficient of thermal expansion for steel, it is 1.17 into 10 to minus 5 per degree Celsius. Alpha A, 2.34 into 10 to minus 5 per degree Celsius. Areas of steel and aluminum bars are 250 mm square and 375 mm square respectively. So this is problem on a series bar whose both ends are fixed, and here areas of steel and areas of aluminum are given, length of steel and length of aluminum are given. So if we summarize the given data for this problem, given data क्या है. T1 initial temperature is 60 degree Celsius. T2 final temperature is 20 degree Celsius. So T is nothing but fall in temperature, that is equal to T1 minus T2. Initial temperature is higher than final temperature, so there is a cooling. So 60 minus 20, that is 40 degree Celsius, is the fall in temperature or decrease in temperature. Now in the two case we have to find out the stress in the two rods if the ends do not yield. पहले केस में ends yield नहीं हो रहे तो thermal stress दोनों में कितना होगा, sigma S and sigma A value for the first case. And in the second case we have to find out the stresses in the steel and aluminum rod if the ends yield by delta is equal to 0.25 mm. तो उसमें थर्मल स्ट्रेसेस कितने होंगे. ऐसे दो केस में प्रॉब्लम सॉल्व करना है. ES is equal to 2 into 10 to 5 Newton per mm square and EA is 0.7 into Young's modulus of aluminum is 0.7 into 10 to 5 Newton per mm square. Alpha S is 1.17 into 10 to minus 5 per degree Celsius. Alpha A is 2.34 into 10 to minus 5 per degree Celsius. So तो ये दो केस में प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है. तो हम पहला केस कंसीडर करेंगे केस वन. केस वन इज दैट व्हेन द एंड्स डू नॉट यील्ड. व्हेन द एंड्स डू नॉट यील्ड व्हाटएवर द फ्री थर्मल कॉन्ट्रैक्शन, व्हेन द एंड्स डू नॉट यील्ड. ये पहला केस है. व्हेन द एंड्स डू नॉट यील्ड. So when the ends do not yield, we have to calculate the total thermal contraction is equal to contraction prevented by the reaction forces. तो यहाँ पे पहले क्या होगा, टोटल थर्मल कॉन्ट्रैक्शन हमें कैलकुलेट करना होगा. इस सीरीज बार का टोटल थर्मल कॉन्ट्रैक्शन हमें कैलकुलेट करना है. सो टोटल free thermal contraction due to fall in temperature there will be contraction of these two bars. So these bars are in series, so their total contraction is equal to, so delta LTH is equal to contraction of the steel, that is given as LS into alpha S into T, where LS is the length of the steel, alpha is the coefficient of thermal contraction of the steel, and T is the temperature fall, that is 40 degrees Celsius. So LS alpha S into T, this is a contraction of the steel, plus LA into alpha A into T, this is a free thermal contraction of aluminum. दोनों के कॉन्ट्रैक्शन अगर ऐड कर देंगे तो हमें इस सीरीज बार का टोटल कॉन्ट्रैक्शन हमें मिल जाएगा. सो LS is the length of the steel and that is given 800 mm. Alpha S is 1.17 into 10 to minus 5. Alpha S का value है 1.17 into 10 to minus 5 multiplied by temperature fall is 40 degrees Celsius. So this is the first contraction of the free thermal contraction of steel. Then second part, the free thermal contraction of aluminum. So LA, that is aluminum का length है 400 mm. So length of aluminum is 400 multiplied by alpha A. Alpha A का value है 2.34 into 10 to minus 5. 2.34 into 10 to minus 5 multiplied by temperature fall is 40 degree Celsius. So total free thermal contraction of this series bar ये हमें मिल गया. Total thermal contraction of this series bar ये वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है. तो ये वैल्यू आ रहा है 0.7488. This is the equation A. We'll mark as a equation A. Total free thermal contraction when there is a temperature fall of 40 degrees Celsius.
Now this contraction, as the both the ends of this series bar are fixed, so there will be reaction, and this reaction will be a tensile reaction. यहाँ पे रिएक्शन होगा और वो रिएक्शन फोर्स है F, और ये फोर्स टेंसाइल होगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन मतलब इनवर्ड मूवमेंट है सीरीज बार का। तो सपोर्ट्स क्या करेंगे, यहाँ पे टेंसाइल फोर्स एक्सर्ट करेंगे, सो लेट द टेंसाइल फोर्स इज ऑफ मैग्नीट्यूड F, टेंसाइल फोर्स इज ऑफ मैग्नीट्यूड F. सो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द इलोंगेशन, टोटल इलोंगेशन ऑफ दिस सीरीज बार ड्यू टू टेंसाइल फोर्स F. टेंसाइल फोर्स की वजह से स्टील और एल्यूमिनियम का इलोंगेशन होगा, तो हमें टोटल इलोंगेशन ड्यू टू टेंसाइल फोर्स F exerted by the reaction by the fixed support. So total elongation due to tensile force F. Tensile force F is the reaction force. So total elongation due to tensile force F. So that elongation will call as a delta suffix E for elongation. So that is equal to elongation of steel plus elongation of aluminum. So total elongation is equal to, यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना है टोटल इलोंगेशन का, इलोंगेशन ऑफ स्टील हमें इस तरह से कैलकुलेट करना है, PL अपॉन E. P मतलब फोर्स exerted on a steel bar is F into length of steel LS divided by area of steel multiplied by Young's modulus of steel. FL अपॉन E फॉर्मूला यूज करके ये इलोंगेशन का इक्वेशन हमें फाइंड आउट करना है. So F into LS upon ES into ES is the elongation of steel due to this tensile force of magnitude F. स्टील और एल्यूमिनियम में फोर्स F ही एक्ट होगा, तो एल्यूमिनियम का इलोंगेशन इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे, टेंसाइल फोर्स F इंटू लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम डिवाइड बाय एरिया ऑफ एल्यूमिनियम A सफिक्स A इंटू यंग्स मॉडुलस ऑफ एल्यूमिनियम. तो ये इक्वेशन आ गया. तो यहाँ पे वैल्यूज पुटअप करेंगे और टोटल इलोंगेशन हम फाइंड आउट करेंगे, डेल्टा एल इज इक्वल टू फोर्स F इंटू लेंथ ऑफ स्टील प्रॉब्लम में दिया हमें 800 mm डिवाइड बाय एरिया ऑफ स्टील इज आल्सो गिवन, एरिया ऑफ स्टील है 250 mm स्क्वायर और स्टील का लेंथ है 800, और एल्यूमिनियम का एरिया है 375 और इसका लेंथ है 400 mm. तो ये वैल्यूज यहाँ पे लेना है. एरिया ऑफ स्टील इज 250 इंटू यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील का वैल्यू दिया है हमें प्रॉब्लम में 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर. सो यंग्स मॉडुलस वैल्यू फॉर स्टील इज 2 × 10⁵, ये यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील वैल्यू है, प्लस elongation of aluminum is equal to force F into length of aluminum is 400, divided by area of aluminum is 375 mm square. 375 mm square is the area of aluminum. So 375 into Young's modulus of aluminum. Young's modulus of aluminum is 0.7 into 10⁵. 0.7 into 10⁵. तो ये इक्वेशन हमें ये इक्वेशन मिल गया, राइट. इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, ये 800 डिवाइड बाय 250 इंटू 2 इंटू 10⁵ का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो ये इक्वेशन रीअरेंज करके लिखेंगे. तो यहाँ पे ये इक्वेशन टोटल इलोंगेशन ड्यू टू टेंसाइल फोर्स F का ये इक्वेशन आया था, तो इसको ये वैल्यू वर्कआउट करके लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ F प्लस ये वैल्यू वर्कआउट करेंगे इन टर्म्स ऑफ F. तो डेल्टा एल इज इक्वल टू इक्वेशन क्या हो जाएगा, 16 पहला टर्म आएगा 16 इंटू 10⁻6 इंटू F प्लस दूसरा टर्म आया 15.24 इंटू 10⁻6 इंटू F अननोन है, यहाँ पे F अननोन है, तो इसको हम बोलेंगे इक्वेशन बी. तो ये इक्वेशन मिल गया, यहाँ पे F अननोन है, तो इसका टोटल एडिशन करेंगे, तो ये एडिशन करने के बाद कितना आंसर आ रहा है हम देखेंगे. तो ये एडिशन करने के बाद इतना आ रहा है, डेल्टा एल इज इक्वल टू 31.24 इंटू 10⁻6 टाइम्स F, इसको इक्वेशन बी बोलेंगे. तो equation A, that is total pre-thermal contraction, is 0.7488 and that is prevented by the tensile force F. So we can say equating equation A and B, जितना thermal contraction हो रहा है, equating equation A and B, जितना टोटल प्री थर्मल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है उतना टेंसाइल फोर्स F की वजह से प्रिवेंट हो रहा है. तो ये इक्वल एंड अपोजिट है. तो डेल्टा एल थर्मल इक्वेशन ए इज डेल्टा एल थर्मल दैट इज इक्वल टू डेल्टा एल ऑफ इलोंगेशन ड्यू टू टेंसाइल फोर्स. ये दोनों इक्वल है. तो डेल्टा एल थर्मल हमने कैलकुलेट किया है, डेल्टा एल थर्मल लेट मी शो दैट वैल्यू. डेल्टा एल थर्मल हमने कैलकुलेट किया है 0.7488. ये हमने डेल्टा थर्मल कैलकुलेट किया है 0.7488 दैट इज इक्वल टू डेल्टा एल ऑफ इलोंगेशन, ये वैल्यू आ रहा है 31.24 इंटू 10⁻6 टाइम्स ऑफ F. तो यहाँ से हमें F का वैल्यू मिलेगा. F का वैल्यू क्या होगा, 0.7488 डिवाइड बाय 31.24 इंटू 10⁻6. तो ये F इक्वल टू F का वैल्यू आ गया 23969.27 न्यूटन.
23969.27 न्यूटन, इतना फोर्स का वैल्यू आ गया। तो इतना टेंसाइल फोर्स फर्स्ट केस में एक्ट हो रहा है सपोर्ट पे। तो स्ट्रेस इन स्टील इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया ऑफ स्टील। सो फोर्स इज दिस। सो फोर्स को हम 10⁻³ के पावर में भी लिख सकते हैं, 23.969 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्टील। एरिया ऑफ स्टील प्रॉब्लम में दिया हमें 250 mm², एरिया ऑफ स्टील दिया है 250 mm², सो दैट एरिया वी हैव टू टेक फॉर कैलकुलेशन 250 mm²। सो फ्रॉम दिस वी गेट द स्ट्रेस इन स्टील का वैल्यू आ रहा है, 95.88 न्यूटन पर mm²। स्ट्रेस इन स्टील इज 95.88 न्यूटन पर mm² फर्स्ट केस में। अभी दूसरा स्ट्रेस हमें फाइंड आउट करना है, स्ट्रेस इन एल्यूमिनियम इज इक्वल टू फोर्स, टेंसाइल फोर्स F डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ एल्यूमिनियम। टेंसाइल फोर्स सेम है, दैट इज 23.969 इंटू 10⁻³। ये टेंसाइल फोर्स है डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ एल्यूमिनियम इज 375 mm², सो डिवाइडेड बाय 375 mm²। सो वी गेट द स्ट्रेस इन एल्यूमिनियम ये आ रहा है 63.92 न्यूटन पर mm²। तो ये स्ट्रेस आ रहा है 63.92। तो ये दो वैल्यू फर्स्ट केस में स्ट्रेस इन स्टील इतना है, ये फर्स्ट आंसर है स्ट्रेस इन स्टील पहले केस में, और दूसरा आंसर है एल्यूमिनियम का, स्ट्रेस इन एल्यूमिनियम इतना आंसर है, ये सेकंड आंसर है। और दोनों टेंसाइल फोर्स की वजह से डेवलप हो गए, तो दोनों का नेचर ब्रैकेट में लिखेंगे टेंसाइल, स्ट्रेस इन स्टील एंड स्ट्रेस इन एल्यूमिनियम बोथ आर टेंसाइल इन नेचर, क्योंकि टेंसाइल फोर्स F की वजह से ये स्ट्रेसेस डेवलप हुए हैं, तो उन दोनों का नेचर क्या है, टेंसाइल। तो यहाँ ये फर्स्ट पार्ट में स्ट्रेसेस के वैल्यूज हमने फाइंड आउट किए, व्हेन द एंड्स डू नॉट यील्ड हमने ये फाइंड आउट किया।